Now the next point that we are going to study is receipts. Receipts is the amount received or receivable for selling assets या फिर goods or services. So what is this? This is the amount, either you have received it, या तो आपको ये पैसा मिल गया है या आपको ये पैसा मिलने वाला है. क्यों? क्योंकि आपने you have sold either the assets or the goods or service. So the main thing to identify is what are assets and what are goods and services. So write it down. For example, we were studying that this A Limited had a business of cloth manufacturing Now this particular company A Limited who was manufacturing the cloth, so ultimately ये सब कुछ करने के बाद what are the goods that they are going to sell? क्या goods sell करेंगे? Definitely the material, different kind of cloth material जो भी होगा, है ना, उसी को ही तो वो sell करेंगे. तो goods क्या होते हैं? Goods are those things that your business produces in order to sell. जो भी आप बेचने के लिए सामान बनाते हैं, that is your goods. अब मुझे ये बताओ, ये क्लॉथ बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी? You would require cash, you would require land and building, you would require machineries, furniture, right? You must be using some stock that was kept earlier. तो ये सब चीज़ें, all those things that are helping you in order to produce the goods, those are your assets. All those things that are going to give you some future economic benefit are your assets. अल्टीमेटली जो बिजनेस जिस चीज़ को सेल करता है वो गुड्स होते हैं, और जिसकी हेल्प से करता है, जो उसका मटेरियल खुद का है, ओन्ड बाय देम, those will give them economic benefits in future. ये आप पढ़ ही चुके हो. Those are your assets. So what is receipts? Receipts मतलब या तो पैसा आ गया, amount received, or yet to be receivable from the assets or goods or services. अब जो आपकी ये receipts होती हैं, these are further of two types. First is capital receipts. Capital receipts are those receipts, वो पैसा that is received or receivable from the sale of assets. इन सबको सेल करके अगर पैसा आता है तो वो क्या है? Capital receipts. And your second point is revenue receipts. That is the amount received or receivable by the sale of goods or services. मतलब कि ये वाले की बात हो रही है, selling the goods and services. Now you already know what are goods. Services क्या है? You are going to beauty parlor से, right? वहाँ जाते हो, वहाँ से आप कुछ भी करवाते हो, से फेशियल करवाते हैं या हेयर कटिंग करवाते हैं. दैट इज़ यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट. आपको कुछ, आप घर लेके कुछ सामान लेकर नहीं आ रहे, बट यू आर गेटिंग अ एक्सपीरियंस दैट यू कैन फील समथिंग intangible, but you have paid money for acquiring those services. Likewise, for example, this A Limited company
is also providing education services online, right? जब ये एजुकेशन सर्विसेज ऑनलाइन ले रहे हैं तो उनका वो जो गुड वो जो सेल कर रहे हैं, जो सर्विसेज सेल कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन दैट यू कैन एक्सपीरियंस एंड कैन गेट एजुकेशन थ्रू दैट, राइट? पर ये एजुकेशन सर्विसेज देने के लिए मुझे एक लैपटॉप चाहिए होगा, ठीक है, स्पीकर्स चाहिए होंगे, माइक चाहिए होगा, राइट? And I would require a lot of stationery, lot of material, all those things. But I am not going to sell all my students laptop, speaker, mic, material and other books and everything. मैं ये सब सेल नहीं कर रही, मैं अपनी एजुकेशन सेल कर रही हूँ. I am providing them with the experience of this service. So whatever is money earned by the business through goods or services, that is your revenue receipts. एंड फॉर एग्जाम्पल एक टाइम आता है जब उनके ये एसेट्स यूज़ कर लिया, जैसे क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग थी और लैंड एंड बिल्डिंग उनके पास थी. अब उनको लग रहा है हमें यहाँ प्लांट सेटअप नहीं करना चाहिए, कहीं और करना चाहिए, तो वो इस लैंड एंड बिल्डिंग को सेल कर देते हैं. जो उससे पैसा आएगा वो बिजनेस से कमाया हुआ रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स. इन केस ऑफ सर्विसेज ऑल्सो इफ आई एम यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, लैपटॉप मुझे लग रहा है मुझे एडवांस लेना चाहिए और पुराना मैंने सेल कर दिया, उससे जो पैसा आएगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी नेक्स्ट पॉइंट. इट इज एक्सपेंडिचर. So what is expenditure? Write down. It is the amount money that is spent or liability incurred for acquiring assets, goods or the services. So what is this? It is the amount, वो पैसा जो आप खर्च करते हैं, amount spent, और the liability incurred. हो सकता है कि ये सामान खरीदने के लिए आपने कोई liability भी उठा ली हो. किन चीज़ों के लिए? For acquiring the assets. Again you know what are assets? Goods or services. Right? हमने जब receipts पढ़े थे तो that is amount that you have received or receivable for assets, goods and services, right, for acquiring them. Here it is the amount that is spent on incurred or the liability incurred for acquiring assets, goods or services. Now these expenditure can be further classified in 3 categories. First is your capital expenditure. Second is revenue expenditure. And third is deferred revenue expenditure. Let's study them one by one. First is your capital expenditure. बच्चे ये एक ऐसा खर्चा है incurred to first to acquire assets, second for improving the existing assets, जो आपके अभी पड़े हुए हैं assets उनको improve करना, improving the existing assets. Why? Because if we are going to improve, it is going to definitely increase these जो भी हम खर्चा करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम खर्चा करते हैं, ये हेल्प करता है आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए. सो टू इंक्रीज
the earning capacity of the business. And this is going to give you the benefit for more than one accounting period. ठीक है, so this is going to give you the benefit for more than one accounting period. एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करना, और ऐसा कोई भी हम खर्चा कर रहे हैं जिससे हम कोई एसेट खरीद रहे हैं, एक्वायरिंग द एसेट्स, राइट। तो जो अगर मैं एक्वायरिंग द एसेट्स की बात करूं, यहाँ फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, तो जैसे कि आपने लैंड खरीदा, पैसे गए होंगे, खर्चा हो गया, आपने बिल्डिंग खरीदी, और कौन से एसेट्स पड़े हैं आपने, गुड, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, कार, मोटर व्हीकल। बिजनेस में वो सब खर्चे करे आपने एसेट्स खरीदने के लिए। एसेट्स जब आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है, दैट यू आर नॉट गोइंग टू रीसेल, जिसको हम रीसेल नहीं करने वाले, और इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स। ठीक है, जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, सच एज इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ थिएटर। आपके पास एक थिएटर था, ठीक है, आप बिजनेस करते थे, आपके पास थिएटर था, आपको लगा कि अगर मैं इसकी सीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दूंगा तो इससे और भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स, ऑडियंस बैठ सकती है, और वो बैठ सकती है तो वो क्या करेगा, और ज़्यादा टिकट्स आप सेल कर सकते हो, एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प इन इंक्रीजिंग दी अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की अर्निंग इंक्रीज हो जाएंगी। तो ऐसा कोई भी खर्चा अगर आप कर रहे हो जिससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है, दैट इज़ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हमने क्या लिखा है, इट इज़ गोइंग टू गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। येस, नाउ देर आर सम expenditures also. For example, business has purchased, for example, lots of air conditioners, और उनको अपने ऑफिसेज में सेटअप करने हैं। तो AC खरीदना तो चलो एक खर्चा है, पर उसको इंस्टॉल करने का मतलब है आप उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ में लेके आ रहे हो, और यूज़ में लाने के लिए भी जो खर्चे होते हैं, दैट इज़ इंक्लूडेड इन योर capital expenditure. So such as any amount that is paid on fixed asset, that is maybe the wages that you have paid for the installation, is also the example of capital expenditure. या हो सकता है आपने एक मशीनरी खरीदी, that was second hand मशीनरी, है ना, तो अभी आप उसको कुछ ठीक करना चाहते हो ताकि फाइनली आप उसे यूज़ में लेके आ सको। तो सेकेंड हैंड मशीनरी को जो भी आप रिपेयरिंग करने वाले हो, रिपेयरिंग करोगे तो उससे क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएंगे आपके एसेट्स, और वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी में इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज द एक्सपेंडिचर विच इज incurred whose benefit will be consumed, or it is going to be exhausted within the accounting period. एक ही साल में उस खर्चे का आप कंज्यूम कर लेंगे, right? Like an expenditure which is not capital in nature. ऐसा कोई भी खर्चा जो कैपिटल नेचर का नहीं है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स लें बच्चे, तो डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस की बात करें, मेरे यहाँ पे मेरे जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हमने बात करी ए लिमिटेड की, वहाँ बहुत सारी लेबर आती होगी,
उनको दिहाड़ी के हिसाब से भी पैसे मिलते होंगे, दैट इज़ वेजेस, और there must be some employers in your company also who would be getting salaries. So these are your day to day expenses of paying the wages, salaries. ठीक है, आपने अगर कोई फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है तो रेंट का एक्सपेंस हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल का खर्चा, ये सब क्या है आपके डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं दैट आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड. उसी साल में वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप जो वेजेस दोगे वो वीकली, डेली या मंथली, ईयरली बेसिस पे होगी, और उसी टाइम में वो उसका बेनिफिट आपको उस एक्सपेंस का मिल जाएगा. सो दीज आर डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस. और मे बी फॉर द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द एसिड. अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने मेंटेनेंस, यहाँ पे जो ये दो वर्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ फॉर द इम्प्रूविंग, ये वर्ड बहुत ध्यान से देखना है, इम्प्रूविंग, एंड दिस इज़ मेंटेनेंस. भाई आपकी फैक्ट्री में मशीन्स लगी रहती हैं, हर कुछ महीने बाद आपको कोशिश, आप उसको ठीक करते हो, आप उसे रिपेयर कर देते हो, पर क्या वो आपकी कैपेसिटी बढ़ा देता है? नहीं बढ़ाता ना. जैसे अगर मैं थिएटर की बात करूं, थिएटर में जो भी टूल्स या मशीनरीज लगे हुए हैं, जो भी वहाँ पे फिल्मिंग लगी हुई है, उसको आप ठीक करते होगे, मशीन्स में ऑयलिंग करते होगे, जो उनकी फिल्म्स है उन्हें क्लीन करते होगे, कोई प्रोसीजर होता होगा, बट वो आपको आपकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे, वो सिर्फ चीज़ को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं. तो जो खर्चे सिर्फ एसेट्स को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल रिपेयर करने के लिए होते हैं, that is your revenue expenditure, and all those expenses that is for improving the existing asset. जैसे सेकेंड हैंड मशीनरी में मैंने जो रिपेयरिंग करी, उससे वो चलने लग गया, उससे वो उसके यूज़ में आ गया और बेटर परफॉर्मेंस देने लग गया. सो दैट इज़ फॉर दी, that it is increasing the earning capacity of the business. Here we are just talking about the maintenance. Okay, or expenses incurred on purchase of, you know, any expenses that are incurred on purchase of stock of material. जो आपने गुड्स बेचने हैं, आपने कुछ स्टॉक खरीदा, और कैन बी गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, राइट. उस साल के लिए जो है वो तो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर आगे भी यूज़ हो जाते हैं देन वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, जैसे मैंने रिपेयर्स की बात करी या वाइट वॉशिंग की बात करें, राइट. That is also your expenditures if that is going to give you the benefit only in this accounting period, right. Deferred revenue expenditure मैंने आपको जब fictitious asset समझाया था, तब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था एडवर्टाइजिंग का, जिसमें मैंने आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया था. एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको फिर से समझा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, अपना मटेरियल सेल करने के लिए एक एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस लेने का सोचा, राइट. फॉर एग्जाम्पल, you tried Deepika Padukone to do this advertising for you, and she is charging 10 crore rupees for doing so. Now, if you feel that this particular thing is going to benefit me for the coming 10 years, so you are going to divide these money. अब अगर आपका ये फर्स्ट ईयर है, राइट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, सपोज दिस एड इज गोइंग टू गिव मी बेनिफिट फॉर द कमिंग 10 ईयर्स, तो मैं सारा 10 करोड़ का खर्चा अगर अपने 1 ईयर में शो कर दूंगी तो मेरी कंपनी तो लॉसेस में आना शुरू हो जाएगी. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डिवाइड this amount into the number of years that is going to give me benefit, say 1 here, and similarly I am going to give the benefit, right. For example, this is the end of the second year, अभी 2 साल ही ख़त्म हुए हैं, तो मैंने जो 2 years में 2 करोड़ रुपीज़ यूज़ कर लिए हैं, इसको हम बोलते हैं the amount that is basically written off, amount
written off. और इस जो अभी आने वाला पूरा टाइम है for all the 8 years, this is amount yet to be written off. अभी नहीं हुआ, होगा. तो अगर आप इसे देखो, मैंने क्या किया है, मैंने इस खर्चे को डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने का मतलब छोटे छोटे हिस्सों में डेफर कर दिया. इसको बोलते हैं डेफर एक्सपेंडिचर. और डेफर एक्सपेंडिचर क्यों? इसमें एक वर्ड आ रहा है रेवेन्यू. अगर मैं बोलूँ कि ये एडवर्टाइजिंग खर्चा कैपिटल है या रेवेन्यू है, अब आप बोलोगे कि मैम ये जो खर्चा है एडवर्टाइजिंग का, ये रेवेन्यू है क्योंकि हमें ये हमारे बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रहा है ना. ये कोई एसेट थोड़ी ना है. एडवर्टाइजिंग तो एक एक्सपेंस है, कोई एसेट थोड़ी ना, हमने कोई एसेट थोड़ी ना एक्वायर किया है. ये तो एक खर्चा है जो हम कर रहे हैं, विच इज़ रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड और सर्विसेज. सो yes, this is revenue in nature, but because this expense we are not going to account in the one accounting period, but we are going to defer it into many parts. That's why this is called deferred revenue expenditure. That is going to give you benefit for more than a accounting period. That's why it is called deferred revenue expenditure. Clear?